عبدالحق نے بہت اہتمام سے وضو کیا۔ اسے یاد تھا جن دنوں وہ حق کی جستجو کر رہا تھا اسے قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن ہر ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ پاک ہوئے بغیر اس کتاب مقدس کو چھونا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ قرآن پڑھے، لیکن دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ مگر آج وہ مبارک دن تھا کہ اس کی یہ آرزو پوری ہونے والی تھی۔ وضو کر کے وہ اٹھا تو اسے خیال آیا کہ اس کے پاس قرآن پاک تو ہے ہی نہیں۔ وہ ابھی بازار چلا جاتا، لیکن اس میں دیر لگتی اور یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ بہت بے قرار اور بے تاب ہو رہا تھا۔ اس نے رابعہ کو آواز دی، ساتھ ہی اسے حیرت ہوئی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ زبان پر چڑھا ہوا اس کا پرانا نام بھول چکا ہے اور اس نئے نام سے اسے پکار رہا ہے۔ یہ یقیناً اللہ کی مہربانی ہے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ رابعہ آئی تو اس نے کہا، منجھلی بی بی سے کہو کہ مجھے قرآن پاک چاہیے۔ رابعہ نور بانو کے پاس چلی گئی۔ نور بانو جواب میں بے ساختہ کہنے والی تھی کہ نیچے اسٹور روم میں موجود ہیں، وہاں سے لے لیں، لیکن وہ ایک لمحہ اس کے لیے طویل ہو گیا۔ اس نے اپنا قرآن پاک جو وہ گزشتہ روز ہی نیچے سے لائی تھی رابعہ کو دے دیا۔ لو، انہیں دے آؤ۔ اس ایک لمحے میں نور بانو نے کتنا کچھ سوچ لیا۔ اس کا جی چاہا کہ ایک چھوٹے ٹھاکر کو باجی کا قرآن پاک دیا جائے، مگر اس نے فوراً ہی اس سوچ سے نظریں چرا لیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ اوپر اس کے اپنے پاس قرآن پاک ایک ہی تھا، مگر اس نے وہی دے دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس کے اندر کسی نے پوچھا۔ وہ پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، اس نے سادگی سے کہا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بات صرف اتنی سی نہیں، لیکن وہ اس پر گہرائی میں جا کر سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا، میں نیچے سامان لینے جاؤں گی تو اور قرآن پاک بھی لے آؤں گی۔ ادھر قرآن پاک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے عبدالحق کا دل اس عاشق کی طرح دھڑک رہا تھا جو پہلی بار اپنے محبوب سے ملنے والا ہو۔ اس نے قرآن پاک لیا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور کھولا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واہ، اس نے سوچا، ہر کام کرنے سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے سامنے سورہ فاتحہ تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ اس کی تلاوت کے بغیر کوئی رکعت مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہر رکعت میں اس کے بعد چھوٹی سورت کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے 15 چھوٹی سورتیں یاد ہونی چاہیے، لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اندر سے ایک آواز ابھری، دیکھ لو، اس نے تمہیں، زبیر اور رابعہ کو ایمان عطا فرمایا۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ بے شک یہ سچ ہے، عبدالحق نے کہا اور دل میں اللہ کو پکارا، میری مدد کیجیے اے اللہ، میرا کام آسان کر دیجیے، اپنا کلام میرے حافظے پر نقش کر دیجیے۔ اس نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پہلی آیت کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس پر کائنات کے، زندگی کے تمام راز اور علوم کھلنے والے ہیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ پہلی ہی آیت نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ ارے، میں کہتا تھا کہ یہ مربوط نظام کسی ایک ہستی نے قائم کیا ہے جو بہت زبردست ہے۔ میں تو ایک عالم کی بات کرتا تھا، صرف اس دنیا کی۔ وہ تو پہلی ہی آیت میں بتا رہا ہے کہ یہ کائنات بے شمار جہانوں پر مشتمل ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اسے اقبال کا مصرع یاد آیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور تعریف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور ہم جو کسی کی تعریف کرتے ہیں وہ بہت اچھا انسان ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں بے شمار مشینیں ہیں، گراریاں ہیں جو حرکت کر رہی ہیں۔ کوئی بہت بڑا بھید، بہت بڑا راز عیاں ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ تھرا کر رہ گیا، اس پر کپ کپی چڑھ گئی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک دن میں کیا، ایک برس میں، ایک عمر میں بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ بابا نے کہا تھا عاجزی سے پڑھنا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا اور اللہ سے رہنمائی طلب کرنا تو یہ عمر بھر کا کام ہے۔ پہلے پڑھنا تو سیکھ لے، پھر غور کرنا۔ اسے خیال آیا کہ ابھی تو اسے کم از کم 15 سورتیں یاد کرنی ہیں،
पहले सूरह फातिहा याद कर ले। फिर बाबा ने कहा था आखिरी पारे में छोटी सूरतें मिलेंगी। वो पढ़ने लगा। हर आयत पर उसका दिल अटकता था। वो गौर करना चाहता था मगर वो खुद को धकेलकर आगे बढ़ा देता था। बहुत मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक रोज़े जज़ा का, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। दिखा हमें रास्ता सीधा, रास्ता उनका कि जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जो भटकने वाले और गुमराह हैं। अब वो याद करने की गर्ज से बार बार पढ़ रहा था। एक बात उसने बहुत अच्छी तरह समझ ली थी, उसे कुरान पाक से मोहब्बत हो गई है। दोहराते हुए उसने देखे बगैर अगली आयत पढ़ी तो उसके जिस्म में खुशगवार सी सनसनी दौड़ गई। अरे, क्या मुझे याद हो गया? उसने जांचने के लिए कुरान पाक से नजरें हटाईं और आगे पढ़ने की कोशिश की। रवानी के साथ ना सही मगर अगली आयत भी उसे याद हो गई थी। शायद कमी सिर्फ जुबान पर रवा होने की थी। 6-7 बार दोहराने के बाद उसने खुद को फिर आजमाया। उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उसे सूरह फातिहा रवानी के साथ याद हो चुकी थी। ये मेरे बस की बात नहीं थी। वो आजिजी से ज़ेरे लब बोला, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अगले सफ़े पर सूरह बकरा उसे पुकार रही थी। उसका दिल मचल उठा। उसने खुद को रोका। पहले नमाज के असबाब मुकम्मल कर लूं, फिर पढ़ूंगा और अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी उतना ही पढ़ूंगा, उसने कहा। मगर बेसब्रापन ठीक नहीं। उसने 30वां पारा खोला। शुरू में तो बड़ी सूरतें थीं। उस वक्त उसने बड़ी सूरतें देखी ही नहीं थीं। वो तो बस सूरह फातिहा से मवाजना कर रहा था। उसने देखा कि सूरतें बतदरीज छोटी हो रही थीं। आखिर उसने पीछे से याद करने का फैसला किया। 1 घंटे बाद उसने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो दिन ही शायद मुबारक दिन था। 1 घंटे के अंदर उसे 16 सूरतें याद हो गईं। वो रवानी से याद हुई थीं मगर पढ़ते हुए वो कभी कभी अटकता था। उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा तो रवानी से याद हो जाएंगी और जब नमाज में पढ़ूंगा तो एतमाद भी बढ़ जाएगा। उसने राबिया को बुलाया। मंझली बीबी के साथ नीचे जाओ, उनसे कहना बहुत ज़रूरी और कीमती सामान अलग बांध लें, कल सुबह सवेरे हम रवाना होंगे। इस बार नूरबानो नीचे गई तो जैसे सब कुछ बदल चुका था। अब वो पिछली बार वाला खौफ नहीं था। निगाहों में उस रात के वो खौफनाक मनाजिर नहीं फिर रहे थे। हाँ, उनकी याद थी जो धीमे अंदाज में दुखी कर रही थी मगर वो दुख नॉर्मल था। आदमी लोगों को खोता है तो उसे दुख होता है। पिछली बार दुख तो कम था, दहशत ज्यादा थी। शायद इसलिए कि वो अपनी बका की तरफ से खौफजदा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। सिर्फ 2 दिन में ये तब्दीली आई थी। उसके जहन में ये बात थी कि उसे बहुत ज्यादा सामान नहीं लेना है, सिर्फ बहुत जरूरी चीजें और ऐसी कीमती चीजें लेनी हैं जो बहुत ज्यादा जगह ना घेरती हों। बुनियादी जरूरत की चीज तो कपड़े थे और उसकी किताबें। उसने कपड़ों का संदूक खोला तो सबसे पहले उसे वो कुर्ते नजर आए जो अम्मा ने, बाजी ने और खुद उसने अवतार सिंह के लिए काढ़े थे। पहली बार वो उन्हें देखकर खुश हुई। अब्दुल हक अब इन तोहफों का और उसकी मोहब्बत का जो इन कुर्तों में छुपी हुई थी पूरी तरह मुस्तहिक था। उसने कुर्तों को गिना तो हैरान हुई। वो 9 कुर्ते थे। एक कुर्ता कहाँ गया? उसने पूरा संदूक उलट पलट कर दिया मगर 10वां कुर्ता मौजूद ही नहीं था। पाजामे अलबत्ता 10 थे। उसने एक एक करके जायजा लिया। अपना कुर्ता तो वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, भूल नहीं सकती थी। उसने जिस कैफियत में उसकी तरपाई और कढ़ाई की थी वो भूलने वाली बात ही नहीं थी और वो कुर्ता मौजूद था। जरा देर में उसे अंदाजा हो गया कि बाजी का काढ़ा हुआ कुर्ता कम है। सवाल ये था कि वो कहाँ गया। वो नहीं जानती थी कि इसका जवाब उसे कभी मालूम नहीं होगा। वो नहीं जानती थी कि बेकसी की मौत के बाद वो कुर्ता ही बाजी की आबरू का पर्दादार बना था और वो कुर्ता खुद उसने मुंह फेरते हुए बाजी के जिस्म पर डाला था जिसके लिए बड़ी चाहत से बाजी ने उसे काढ़ा था। उसने वो कपड़े उसी संदूक में रख दिए जिसमें ले जाने वाला सामान रखना था। उसका काढ़ा हुआ कुर्ता सबसे ऊपर था। उसने इधर उधर देखा। राबिया दालान में बैठी हुई थी। वो उसके साथ महज 2 सराहट के लिए आई थी। उसे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो क्या रख रही है और क्या जोड़ रही है। उसे खुशी थी कि उसे तन्हाई मुयस्सर है
उसने उस कुर्ते को बड़ी मोहब्बत से छुआ। उस वक्त उसके चेहरे पर जो रंग थे वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें देखे, और वो उस वक्त को याद करना चाहती थी जब उसने वो कुर्ता काढ़ा था, मगर उसके पास वक्त नहीं था। इस वक्त तो उसे जल्द अज जल्द सामान पैक करना था। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करनी थी। वो कपड़ों की तरफ मुतवज्जे हुई। पहले उसने अपने आम इस्तेमाल के कपड़े निकाले, फिर अच्छे कपड़ों का ख्याल आया। अम्मा थोड़ा थोड़ा करके तीनों बेटियों की शादी की तैयारी कर रही थीं। जब जब मौका होता वो एक एक जोड़ा बनाकर इस संदूक में डाल देती। हर बेटी का उन्होंने अलग संदूक बना रखा था। उसने अपना संदूक खोला और उसमें से तमाम चीजें निकाल ली। उसका इरादा था कि दोनों बहनों की किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाएगी, मगर फिर उसने सोचा कि उनके जेवरात निकाल लेने चाहिए। पाकिस्तान जाकर वो किसी जरूरतमंद को दे देगी। अल्लाह बहनों को अजर देगा। उसने गुलनार के संदूक से जेवरात निकाल लिए। फिर वो बाजी के संदूक की तरफ मुतवज्जे हुई। जेवरात निकालते हुए बाजी के एक कामदानी के जोड़े पर उसकी नजरें जम गईं। उसका जी चाहा कि वो जोड़ा निकालकर अपने सामान में रख ले, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। मरी हुई बहन की कोई जाती चीज लेना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर दिल इसे छोड़ने पर मान ही नहीं रहा था। न जाने क्यों वो जोड़ा उसे बहुत अहम लग रहा था। ये अलग कि उसकी अहमियत वो समझ नहीं पा रही थी। वो हिचकिचाती रही, लेकिन ना वो संदूक के पास से हटी, ना ही उसने संदूक बंद किया। वो सोच रही थी कि ये सब चीजें जो यहाँ छोड़ जाएगी न जाने किसको मिलेंगी। जरूरी तो नहीं कि कोई मुस्तहिक ही हो। फिर ये एक जोड़ा लेने में हर्ज ही क्या है। खास हिचकिचाहट के बाद उसने जोड़ा अपने सामान में रख लिया। अम्मा की तिजोरी में अम्मा के जेवरात के अलावा नकद रकम भी थी। उसने वो तमाम चीजें भी सामान में रख लीं। अब सिर्फ किताबों का मरहला रह गया था। किताबें दीनी और इल्मी थीं। ये हकीकत उस पर पूरी तरह रोशन थी कि किताबें वो अब्दुल हक की वजह से ले जाना चाहती है। उससे ज्यादा अब्दुल हक को इन किताबों की जरूरत थी। हर तरफ से मुतमईन होकर उसने राबिया को आवाज दे ली। ईशा के बाद वो सब सोने के लिए लेट गए। दिन भर उनमें से किसी ने एक झपकी भी नहीं ली थी और सुबह उन्हें सफर के लिए निकलना था, मगर अब्दुल हक की आंखों में अब भी नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने एक ऐसा दिन गुजारा था जिसमें उसे ना अपनी खबर थी, ना गिरदो पेश का एहसास था, बल्कि गुज़िश्ता रात ही से उसकी एक कैफियत थी। उसे सोचने की तो फुर्सत ही नहीं मिली थी। जो कुछ हुआ था बहुत तेजी से हुआ था, और एक दिन में इतना कुछ हो गया था कि जो बरसों में भी नहीं होता। बरसों से जो कुछ समझने और जानने की कोशिश कर रहा था वो उसने सिर्फ एक लम्हे में समझ लिया था और जान लिया था। बरसों से जिस चीज की वो जुस्तजू कर रहा था वो सिर्फ एक लम्हे में उसे मिल गई थी। और कैसी सच्ची चीज थी वो कि उसका सीना उसने रोशन कर दिया था। उसे ऐसी खुशी का एहसास हुआ जो बहुत बड़ी थी, ऐसी खुशी जिसका उसे पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ था। उसका पूरा वजूद उस खुशी से भर गया, छलकने लगा। उसका जी चाहा कि उठे और बाहर निकल जाए और चीख चीख कर सबको, हर शख्स को, वो शनासा हो या अजनबी, अपनी इस खुशी के बारे में बताए। अर्शमीदस की तरह जिसने पानी में गौता लगाते हुए कसाफत का राज समझा तो इतना खुश हुआ कि मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया, मैंने पा लिया के नारे लगाता हुआ पानी से निकल आया था। और उसे ये एहसास भी नहीं था कि वो बेलिबास है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो अपनी खुशी से महजूज हो सकता था। वो अपने अंदर ही अंदर इस खुशी से खेल सकता था। अचानक उसे ख्याल आया, बाबा ने कहा था पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए फिर बंदे को शुक्रिया कहिए। इसमें कोताही शिर्क है और अल्लाह शिर्क पर कभी मुआफ नहीं करता। वो इस पर गौर करने लगा। ये तो वो जानता था कि अल्लाह ने उसे बड़ी नेमत अता फरमाई है, बहुत बड़ा करम हुआ है उस पर। ये किसी के बताने की बात नहीं थी। ये एहसास तो उसके वजूद के अंदर पहले ही मौजूद था, मगर उसे लग रहा था कि बाबा की बात में समंदर की सी गहराई है, बड़े मानी छुपे हैं इसमें। लेकिन उस वक्त वो इर्तिकाज से महरूम था, गौर नहीं कर पा रहा था। उसने इस ख्याल से दामन छुड़ा लिया। अल्लाह का शुक्र तो उसे अदा करना था और सारी जिंदगी अदा करना था। वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। फिर अचानक उसे अपनी एक पुरानी देरीना आरजू याद आई। बरसों से वो सोचता था वो ऊपर वाला ही तो है जिसने जिंदगी समेत बेशुमार नेमतें अता की हैं। वही सबसे ज्यादा मोहब्बत का हकदार है।
इंसान को सबसे बढ़कर उससे मोहब्बत करनी चाहिए और वो चाहता था कि उससे मोहब्बत करे, इसलिए तो वो उसकी जुस्तजू कर रहा था। वो सोचता था कि वो उसे समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो मोहब्बत कैसे करेगा। और अब उसने रहमत फरमाई थी, उसने उसे अपना रास्ता दिखा दिया था, उसे खुद से मुतारिफ करा दिया था। अब तो वो उससे मोहब्बत कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही उसे बेबसी का निहायत शदीद एहसास हुआ। इस बेबसी के दो रुख थे। एक तो ये था कि तारुफ तो हो गया, लेकिन वो अभी उसे कितना जानता है, कुछ भी नहीं। साथ ही उसे ये एहसास भी हुआ कि उसकी अजमत तो ऐसी है कि जानने वाले भी शायद ये दावा ना कर सकें कि उसे जानते हैं। फिर ये तसल्ली भी हुई कि अब उसे रास्ता तो दिखा दिया गया है, अब वो जानने की कोशिश कर सकता है, और वो भी दुरुस्त सिमत में। और मोहब्बत तो उसे अपने पैदा करने वाले से है और वो करता रहेगा। बेबसी का दूसरा रुख ये था कि वो उससे मोहब्बत कैसे करे। मोहब्बत को इजहार करने का, जुबान से ये कहते रहने का नाम तो है नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये सच है कि मोहब्बत करने वालों को दुनिया में बेअमल और नाकारा समझा जाता है, मगर दर हकीकत मोहब्बत अमली चीज है। इसका इजहार जुबान की बजाय अमल से ही अच्छा लगता है। सवाल यह है कि वो अल्लाह से कैसे मोहब्बत करे। बेबसी के आलम में उसने सोचा कि आदमी अपने जैसे किसी आदमी से मोहब्बत करे तो क्या करता है, कोशिश करता है कि जो कुछ उसे अच्छा लगे वो उसे दे, वो काम करे जो उसे पसंद हो, वो काम ना करे जो उसे नापसंद हो, उसकी खुशी में खुश होकर उसकी हर मर्जी पूरी करे। फिर उसने सोचा कि अल्लाह को कुछ देने का तो सवाल ही नहीं, सब कुछ अल्लाह का ही है और अल्लाह ताला देने वाला है, हर जरूरत से पाक और बेनियाज। हाँ, वो काम किए जाएं जो अल्लाह को पसंद हैं और वो काम ना किए जाएं जो उसे नापसंद हों। अल्लाह के हर हुक्म की तामील की जाए। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो बहुत तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तो उसे हिदायत पाए 24 घंटे भी नहीं हुए। इतना तेज दौड़ने में कोई लग़ज़िश ना हो जाए, कोई गुमराही मुसल्लत ना हो जाए। अभी तो उसे कुरान पढ़ना है, पढ़ते रहना है और समझना है, फिर उसकी समझ में आने लगेगा। बाबा ने कहा था, याद रखना, कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो इंसान को अता की गई है, और इंसान पर कुरान के 4 हुकूक हैं। इसे पढ़ो और समझो और इस पर अमल करो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ। ये सफर बहुत तवील है और जिंदगी इसीलिए दी गई है। उसने सोचा, वो ख्वाह जल्दबाजी कर रहा है, बरसों वो जुस्तजू करता रहा है, भटकता रहा है, उसकी कोशिश से कुछ ना हुआ और अल्लाह ने इनायत की तो लम्हे में इतना कुछ हो गया। उसे बस तरतीब से कुरान पाक के 4 हुकूक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह को जब मंजूर होगा तो वो उसे मोहब्बत के आदाब सिखा देगा। लेकिन उसके जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी, उसकी कैफियत हैजानी थी। ऐसे में खुद को सोचने से रोकना आसान नहीं था। उस वक्त तो नींद ही उसका मसला हल कर सकती थी, और नींद उसे आ नहीं रही थी। हैजान इस बात का था कि उस दिन के एक एक लम्हे में उसके लिए ऐसी लज्जत और ऐसी सरशारी थी जिससे वो इससे पहले नावाकिफ था, और उस लम्हे की लज्जत तो वो भूल ही नहीं सकता था जब उसने कलमा पढ़ा था। उस वक्त गिरदो पेश ऐसी रोशनी थी जिसका हुस्न वो बयान ही नहीं कर सकता था, इसलिए कि ऐसी रोशनी उसने कभी नहीं देखी थी। वो अर्जी रोशनी तो थी ही नहीं, वो तो कोई आसमानी चीज थी, और उसमें कैसी ठंडक और कैसा सुकून था। वो रोशनी अपनी ठंडक और सुकून समेत उसके जिस्म में उतरने लगी थी, और न जाने कैसे उसे ये कुदरत हासिल हो गई थी कि वो अपने जिस्म के अंदर झांक सकता था। और उसने हैरत से देखा था कि उसका वजूद वैसा ही रोशन हो गया था जैसा गिरदो पेश था, बल्कि बाहर अंधेरा छाने लगा था और अंदर रोशनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि निगाहें चुंधियाने लगी थीं। वही लम्हा था जब उसका वजूद सुकून और तमानियत से भर गया था। दिमाग से हर ख्याल, हर सोच मिट गई थी। सुकून और तमानियत के सिवा कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। उसे नींद आने लगी थी, और इस नींद में अनोखी, नाकाबिले बयान लज्जत थी जिसे वो अब भी महसूस कर सकता था, लेकिन बयान नहीं कर सकता था। उसे याद था कि उन लम्हों में जब उस पर नींद तारी हो रही थी, उसने अपने अंदर झांकते हुए अपने दिल को देखा था। वो इतना रोशन लग रहा था कि उसकी तरफ देखना मुहाल था,
और उस रोशनी का कम से कम कोई जमीनी रंग नहीं था। वो रंग लग तो रहा था, लेकिन वैसा रंग उसने कभी देखा नहीं था, और उसके दिल से रंग बिरंगी किरणें फूट रही थीं। फिर उसके बाद उसे होश नहीं रहा था और वो सो गया था। और जब वो जागा तो वो याद कर रहा था और उसे याद आ रहा था। वो जागा तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तवील, बहुत अच्छी और पुरलज़्ज़त नींद के बाद बेदार हुआ है। उसका दिमाग तरोताज़ा और रोशन था। उसकी जिस्मानी कैफियत भी यही थी। ये बात उसके लिए भी नाकाबिले यकीन थी कि वो महज चंद लम्हे सोया था, मगर वो जानता था कि ये हकीकत है। तो वो कैसी नींद थी, और अब उसे नींद नहीं आ रही। तो क्या इसलिए कि उन लम्हों में वो कई रातों की नींद पूरी कर चुका है? वो वक्त याद करते हुए उस वक्त भी उसके रगों पे में कैफो इम्बिसात दौड़ रहा था। बड़ी लज्जत थी उस याद में भी। उसने सोचा, क्यों ना शुरू से वो सब याद करूं। उसने याद करना शुरू किया। वो अपनी लाठी उठाए गली में टहलकर पहरा दे रहा था कि उसने वो आवाज सुनी। उससे आगे वो कुछ नहीं सोच सका। वो बुरी तरह चौंका था। फिर वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपने कमरे में नूरबानो जाग रही थी। जो कुर्ता उसने उस वक्त छोटे ठाकुर के लिए अपने हाथों से काढ़ा था और सिया था, उसके हाथ में था। वो उसके एक एक टांके को, कढ़ाई किए हुए एक एक फूल को बड़ी मोहब्बत से सहला रही थी। कुर्ता क्या था, वो तो उसके लिए यादों का खजाना था। ऐसी यादों का खजाना जो कभी उसके लिए नाखुशगवार थीं, मगर अब खुशगवार हो गई थीं। अब वो याद कर सकती थी। उसने जिस वक्त अम्मा से कहा कि एक कुर्ता वो काढ़ेगी, तो उसे गुमान भी नहीं था कि वो कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए काढ़े जा रहे हैं। वो तो ये समझी थी कि अम्मा अभी से घर के लोगों के लिए गर्मी का सामान कर रही हैं। उसे याद था कि जब अम्मा ने बताया कि वो तमाम कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए काढ़े जा रहे हैं, तो वो कैसे खिसियाई थी, और बाजी ने कैसे मानी खेज नजरों से उसकी तरफ देखा था, और उन्होंने कहा था, इतने कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए, और एक कुर्ता नूरबानो भी काढ़ेगी। वो इससे इनकार करने वाली थी, लेकिन जानती थी कि इस सूरत में बहनें उसका मजाक उड़ाएंगी। सो उसने दिल पक्का करके बज़ाहिर बेपरवाही से कहा था, कुर्ता काढ़ने में क्या बुराई है, वो तो मैं जरूर काढ़ूंगी। बाजी ने झट से कहा था, अम्मा, एक कुर्ता मैं भी काढ़ूंगी। और अम्मा ने बस उनकी मोहब्बत में इजाजत दे दी थी, वरना वो इस काम में किसी का साझा नहीं चाहती थीं। उसने कह तो दिया था, मगर शुरू में उसका दिल ही नहीं चाहा। उसने सोचा था वो कुर्ता काढ़ेगी ही नहीं, और आखिर में अम्मा तंग आकर उससे कुर्ता वापस ले लेंगी। लेकिन फिर उसने बाजी को कुर्ता काढ़ते देखा तो उसे कुछ होने लगा। उसने देखा था कि बाजी कुर्ते पर कढ़ाई करती हैं, तो बिल्कुल अकेले में, तन्हाई में। उस वक्त जब घर के सब लोग मसरूफ होते हैं, वो खुद भी किसी किताब के मुताले में खोई होती थी। वो तो उस रोज वो पानी पीने के लिए ना उठी होती तो उसे भी पता नहीं चलता। उठी तो वो पानी पीने के लिए थी, मगर न जाने क्यों वो दालान में चली गई। वहां बाजी तख्त पर बैठी कुर्ते पर कढ़ाई कर रही थी, और उनके एहनामाक का ये आलम था कि वो खड़ी उन्हें देखती रही और उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। और वो मंजर बहुत अजीब था, खूबसूरत था। बाजी के चेहरे पर जैसे धनक के तमाम रंग बिखरे हुए थे। एक बार उन्होंने आंखें उठाकर भी देखा तो उनकी आंखों में वही रंग नजर आए, लेकिन यह भी साबित हो गया कि वो कुछ देख नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे भी नहीं देखा था जो उनकी निगाहों के सामने खड़ी थी। वो तो जैसे कुछ और ही देख रही थी, और उनकी आंखों की कैफियत, उनके तासुरात बताते थे कि वो कोई बहुत हसीन मंजर देख रही हैं। फिर उन्होंने नजरें झुकाईं और दोबारा कुर्ते की तरफ मुतवज्जे हो गईं। नूरबानो मबहूत होकर रह गई थी। उसे हैरत थी कि बाजी ने उसे देखकर भी नहीं देखा। देख लिया होता तो वो कुछ नहीं करती जो उन्होंने बाद में किया। नूरबानो तो बस सहरज़दा सी उन्हें देखती रही। बाजी वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, मगर उस वक्त तो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी, और उनके चेहरे पर ऐसी पाकीज़गी थी कि उसकी कसम खाई जा सकती थी। वो बाजी को देखती रही। बाजी ने कपड़े को बड़ी मोहब्बत और नरमी से छुआ, सहलाया। फिर उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी। फिर उन्होंने एक टांका लगाया, फिर उस टांके को सहलाया, और उनके होंठ दोबारा हिले। वो हैरत से देखती रही। चंद लम्हों में उसे अंदाजा हो गया कि ये सब बाजी का मामूल है जिसे वो दोहराती हैं। वो कपड़े को सहलाती, धागे को सहलाती, सुई को चूमती,
ٹانکا لگاتی اور پھر ٹانکے کو سہلاتی۔ اچانک نوربانو کے اندر شدید غصہ ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ باجی اس کرتے کی ہر چیز کو اپنی محبت سونپ رہی تھی اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عبادت کر رہی ہوں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ باجی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ آئی، لیکن اب کتاب میں اس کا دل نہیں لگا۔ اسے رہ رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جو اس نے دالان میں دیکھا تھا، اور غصے کے باوجود وہ یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت منظر تھا، خوبصورت اور پاکیزہ، اور اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس زمین کا کوئی منظر نہیں لگ رہا تھا، اس میں کوئی غیر عرضی بات تھی۔ اس نے سوال کیا، محبت اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے؟ صرف محبت کی بات ہوتی تو اسے اتنی حیرت نہ ہوتی، مگر یہ تو ایک کافر، ایک مشرک کی محبت تھی، اور وہ محبت اس کے پاس بھی تھی، مگر وہ اس پر شرمندہ رہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی شرمندگی بجا ہے، بلکہ کم ہے۔ تو باجی کو شرمندگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنی اس شرمندگی پر فخر کرتی رہی تھی اور باجی کی ڈھٹائی پر انہیں برا سمجھتی رہی تھی، مگر وہ منظر دیکھنے کے بعد وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی، خوبصورتی اللہ کی عطا ہے۔ ہر اچھی چیز کی طرح اللہ نے باجی کو حسین، بہت حسین بنایا۔ یہی تو اسے شکایت تھی اللہ سے کہ اسے نظر انداز کر دیا، مگر اس کرتے پر کڑھائی کرتے ہوئے باجی جتنی خوبصورت تھی اس سے 1000 گنا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تو یہ بات واضح تھی کہ خوبصورتی میں وہ اضافہ اس محبت کی وجہ سے تھا جو وہ اس وقت چھوٹے ٹھاکر کے لیے محسوس کر رہی تھی، اور جس کے زیر اثر وہ اس وقت چھوٹے ٹھاکر کے کرتے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ اور وہ اضافی خوبصورتی بھی اللہ کی عطا تھی، وہ شیطان کی دین تو نہیں کہہ سکتی تھیں۔ یہ سوچتے ہوئے بھی اس پر لرزہ چڑھنے لگا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو باجی کی چھوٹے ٹھاکر سے محبت پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ اس لیے تو انعام کے طور پر باجی کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ اس بات نے اسے الجھا دیا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن مشرک کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، پھر یہ عنایت کیسی؟ تو کیا یوں ہے کہ محبت پاکیزہ ہو تو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، خواہ کسی مشرک سے کی جائے؟ مگر اس خیال سے وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ تو یقینی طور پر فاسد خیال ہے، مگر باجی کی ان لمحوں کی خوبصورتی کی وہ چشمدید گواہ ہے۔ اسے ڈر لگنے لگا، اس کی سوچیں گمراہی کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ اللہ کی خاطر اپنی محبت سے منہ موڑ رہی ہے اور پھر بھی عذاب میں ہے، اور باجی اللہ کے لیے بھی اپنی محبت نہیں چھوڑتی اور پرسکون اور خوش ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بس یہ ہے کہ اللہ نے باجی کو ہر معاملے میں نوازا ہے اور اسے نظر انداز کیا ہے۔ باجی کو گناہ پر بھی انعام ملتا ہے۔ اس نے جل کر سوچا، مگر وہ فوراً ہی ڈر گئی۔ یہ اللہ کے بارے میں وہ کیسے سوچ رہی ہے؟ اس نے دل میں توبہ کی اور سوچا، بس یہ محبت کا کمال ہے۔ ثابت ہو گیا کہ محبت بہت خوبصورت اور طاقتور جذبہ ہے۔ اس کے بعد اسے باجی سے شدید رقابت محسوس ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی باجی کا رویہ اپنائے گی، چھوٹے ٹھاکر کے معاملے میں اپنی محبت کا گلا نہیں گھونٹے گی، چپکے چپکے اس سے محبت کرے گی اور اس کی محبت سے نہیں لڑے گی۔ لیکن عملی طور پر یہ ناممکن ثابت ہوا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر سے محبت تو کرتی تھی، مگر اس محبت کو قبول کر لینا، خود کو اس کے سپرد کر دینا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ اس نے باجی کی دلیلوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر بات نہیں بنی۔ کیا ہوا جو وہ عربی سیکھتا ہے؟ کیا ہوا جو وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے؟ اس کے باوجود ہے تو وہ مشرک ہی۔ بس اس نے باجی کی ضد میں ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کے لیے کرتا کاڑھے گی اور اس میں اپنی پوری محبت سمو دے گی۔ اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاں، وہ ترک محبت کی کوشش بھی کرتی رہے گی اور اس میں ناکامی پر شرمندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تب اس نے کرتے پر کڑھائی شروع کی اور بڑی محبت سے کی۔ کرتے کا ایک ایک ٹانکا، ایک ایک پھول اس کی محبت کا گواہ تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی دبی ہوئی، کچلی ہوئی محبت کو ابھرنے کا موقع دیا تھا تو وہ پوری شدت سے ابھری تھی۔ اس محبت کی گرمی، گداز، نزاکت اور سچائی سب اس کرتے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اماں نے کرتا دیکھا تو بہت خوش ہوئی تھیں۔ ان کا خیال تھا
کہ اس نے محض مروت میں بے دلی کے ساتھ کام کیا ہے تو اتنا خوبصورت کام کیا ہے، طبیعت سے کرے گی تو کتنا اچھا کرے گی۔ اور اس نے کہا تھا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں اماں، یہ کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے، اور کام محبت سے کیا جائے تو عبادت ہوتا ہے۔ یہ آخری جملہ کہتے وقت اس کے تصور میں کرتا کاٹتی ہوئی باجی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ کرتا مکمل کرنے کے بعد وہ پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی اور کوڑتی کہ اس کا اتنی محبت سے کاڑھا ہوا کرتا ایک مشرک پہنے گا، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اور اب اس وقت وہ اسی کرتے کو بڑی محبت اور فخر سے سہلا رہی تھی۔ اس کے پاس چھوٹے ٹھاکر کے لیے ایک یہی کرتا تو تھا جو اچھا تھا، باقی تو سب کچھ برا ہی تھا، بہت برا۔ وہ تو کبھی وقت پڑنے پر اس کے سامنے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے کیا سمجھتی رہی ہے، اور وہ بھی اس سے محبت کرنے کے باوجود۔ اس نے کرتے کو محبت سے چوم لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ کرتا ایک مومن پہنے گا، وہ بڑبڑائی۔ اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ اماں ٹھیک ہی کہتی تھیں، کافر کو کافر اور مشرک کو مشرک نہ کہو، اس کے لیے اللہ سے ایمان کی دعا کرو، کون جانے اللہ کب اسے ہدایت سے نواز دے اور اسے تم سے زیادہ ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا احساس کمتری اور بڑھ گیا۔ وہ جسے کافر اور مشرک کہتی تھی، اسے اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور کیسے مبارک وقت میں عطا فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب، اور جس انداز میں ایمان عطا فرمایا وہ اس کی عینی شاہد تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے عربی پڑھی تھی اور سمجھتا تھا۔ اس نے اللہ کی روشن آیات سنی، سمجھی، سر اٹھا کر تصدیق کی اور ان کی سند پر ایمان لایا۔ خالص ایمان، بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کے لیے۔ اور کیسے وہ بزرگ اس کی مدد کے لیے آیا۔ یقیناً اللہ اس پر بہت مہربان ہے، اور وہ اس کے سامنے کتنی حقیر، کتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ اچانک اسے خیال آیا، اس وقت اماں موجود ہوتی تو کتنی خوش ہوتی، اور باجی ہوتی تو۔ اس کا دل کٹنے لگا۔ ارے یہ تو باجی کا حق تھا، انہیں کیسا یقین تھا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، اسی لیے تو وہ اپنی محبت پر بھی شرمندہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی محبت کو بڑے فخر سے سنبھال کر رکھا، لیکن باجی ہوتی تو میں۔ اس سے آگے اس نے خود کو سوچنے سے روک دیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑبڑائی، اب باجی نہیں ہے تو بھی میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے، میں اس قابل ہوں ہی کہاں، صورت شکل بھی اچھی نہیں، اور اس کی تحقیر بھی کرتی رہی ہوں میں، بس میں تو یہ کرتا اسے دے سکتی ہوں۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ اس نے سوچا، مجھے باجی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، محبت کرنا انہی سے تو سیکھ سکتی ہوں میں، کچھ ملنے کا امکان ہو نہ ہو، مجھے اب محبت کرنے کا سلیقہ تو سیکھنا چاہیے۔ اور یہ محبت میں نے ارادے سے کب کی ہے، یہ تو مجھے زبردستی سونپی گئی ہے۔ مجھے اس سے کیا غرض کہ عبدالحق مجھے کبھی نہیں مل سکیں گے، مجھے تو اس توہین کا ازالہ کرنا ہے جو میں محبت کی اور اپنے محبوب کی کرتی رہی ہوں۔ اور باجی کو بھی کوئی ملنے کی امید تو نہیں تھی، بس محبت انہیں سونپ دی گئی، اور وہ اسے بڑے سلیقے سے، بڑی محبت سے کرتی رہیں۔ باجی یقیناً اندر سے بھی بہت روشن رہی ہوں گی۔ آدمی کے لیے تو بس یہی بہتر ہے کہ جو کچھ بھی اسے دیا جائے اس سے بہترین طور پر استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ ہیجان سے تو وہ گزشتہ رات سے ہی دو چار تھا۔ پورے دن جسم میں خوشگوار اور کیف آمیز سنسنی دوڑتی رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہیجان اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اسے خیال ہی ایسا آیا تھا، وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ یہی ایک خیال اس کے ذہن میں اس پرندے کی طرح چکرا رہا تھا جو کسی کمرے میں بند ہو گیا ہو اور گھبرا کر پر پھڑ پھڑاتا ہوا اڑ رہا ہو، لیکن اسے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہو۔ وہ آواز، وہ تو وہی آواز تھی جو اس نے پہلی بار سنی تھی، تو اسے آواز والی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ آواز جو بعد میں اس سے چھن گئی تھی لیکن اس کی سماعت میں گونجتی رہتی تھی، وہ آواز جس نے اسے دنیا کے حسن سے اور ریٹا پارسن کی خوفناک ترین ترغیبات سے بے نیاز کر دیا تھا، وہی آواز تو تھی جس کی ڈور سے بندھا گزشتہ رات وہ بے اختیار کوٹھے پر کھینچا چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ وہی آواز تھی، اور بے اختیاری کے ابتدائی لمحوں میں
اسے اس کا احساس بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اب تک اس بات کو بھولا رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو گیا، اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو وہ لڑکی زندہ ہے، وہ منجلی بی بی ہے۔ وہ اس کا نام نہیں جانتا، لیکن وہ زندہ ہے۔ اسے یاد تھا 2 لڑکیوں کی تدفین کے موقع پر اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ آواز والی ان دونوں ہی میں سے کوئی ایک ہے، اور اس خیال سے اس کے دل میں ایسا غم ابھرا تھا کہ زندگی اسے بے معنی لگنے لگی تھی۔ مگر اس وقت شاید اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی۔ اس خوشی کے سحر سے نکلنے میں اسے کچھ دیر لگی۔ جب وہ سوچنے کے قابل ہوا تو اسے خیال آیا کہ یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ تقریباً 24 گھنٹے بعد اسے یہ احساس ہوا۔ اسے اس آواز کے بارے میں یاد ہی نہیں آیا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیا یہ محبت میں کمی کی، اس کی اہمیت کم ہونے کی، یا اہمیت بالکل ختم ہونے کی دلیل ہے؟ آخری بات تو غلط ثابت ہو گئی۔ اندر ابھرنے والی خوشی اتنی بڑی تھی کہ وہ خود اس محبت کی زندگی اور اہمیت کی دلیل تھی۔ عبدالحق تو شروع ہی سے غور کرنے والا، تجزیہ کرنے والا ذہن رکھتا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آواز کو سننے کے لمحے سے لے کر آخر تک دہرانے لگا۔ آواز سنتے ہی وہ آواز کی سمت لپکا تھا۔ اس لمحے اسے احساس تھا کہ یہ وہی آواز ہے جس کی خاطر اس نے عربی سیکھی تھی، جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا۔ مگر اس کے بعد وہ آواز کہیں پیچھے چلی گئی تھی اور اس پر از خود رفتگی کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، اور اوپر پہنچتے پہنچتے وہ ایک خاص کیفیت میں آ گیا تھا جس میں اسے نہ اس آواز کا خیال تھا اور نہ گرد و پیش کا۔ اور وہ از خود رفتگی ایسی مکمل تھی کہ وہ اوپر کوٹھے پر پہنچ کر ہی رکا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہوش میں ہوتا تو پردہ دار لڑکی کو اوپر دیکھ کر ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکتا، خاموشی سے نیچے چلا آتا۔ لیکن اسے تو کسی بات کا احساس ہی نہیں تھا، اور اسے یاد تھا آواز کہیں پیچھے، بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ صرف الفاظ سن رہا تھا۔ اس وقت وہ ایسی حالت ارتکاز میں تھا کہ اس کے لیے کائنات میں ان لفظوں کے سوا کچھ نہیں رہا تھا، اور وہ ایک ایک لفظ کا مطلب صاف اور واضح طور پر سمجھ رہا تھا۔ وہ آیات اسے اب بھی مفہوم سمیت یاد تھیں۔ وہ تو جیسے اس کے دل پر کندہ ہو گئی تھیں۔ آج ہی جب وہ کوٹھے پر گیا تو اس نے آسمان کو دیکھا، وہ آیات پڑھی اور آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اسے یقین تھا کہ اب زندگی بھر وہ جب بھی آسمان کو دیکھے گا تو یہی کرے گا، لیکن شاید اب وہ 7 آسمان کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ تو اللہ نے اس پر رحمت فرمائی تھی اسے ایمان عطا فرمانے کے لیے۔ تو اس وقت وہ بس وہ الفاظ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا اور ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ پھر اس کے اندر کسی نے اسے ڈانٹا تھا، کیا تو اب بھی کلمہ نہ پڑھے گا؟ تب وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا، ورنہ تو اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اسے کلمہ یاد ہے۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اچانک عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بالکل ہی اچانک اسے ادراک ہوا تھا کہ اللہ نے اس رات اس پر صرف عنایت نہیں کی کہ اسے ایمان سے نوازا، اللہ نے اس پر ایک اور بڑی رحمت فرمائی، ورنہ وہ ساری زندگی ایک بہت بڑی خلش میں مبتلا رہتا۔ اللہ نے عنایت فرمائی کہ ہدایت کے ان لمحوں میں اس آواز کو بیچ سے ہٹا دیا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ محبت کی کمی نہیں تھی بلکہ اللہ کی رحمت تھی، اور اب وہ اس کی حکمت کو بھی سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ آواز درمیان سے ہٹ گئی، رابطہ الفاظ بنے، اللہ کے الفاظ، ورنہ وہ اس آواز سے، آواز والی سے کیسی محبت کرتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ خلش ستاتی کہ اس نے اس آواز کی وجہ سے آواز والی کی محبت میں ایمان قبول کیا۔ ارے وہ تو اس احساس کو کبھی مٹا ہی نہیں سکتا تھا، اور اس بات کی بڑی اہمیت تھی۔ جب زبیر نے اسلام قبول کرنے کو کہا تو اسی منجلی بی بی نے کہا تھا، یہ تو آپ کی محبت میں ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں دل کی گہرائیوں سے کوئی ایمان لائے تو مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ بات اسے بھی سننی پڑتی، اور سننی نہ بھی پڑتی تو اس کا ضمیر تو اسے ہمیشہ ملامت کرتا، اپنا ایمان اس کی نظر میں ہمیشہ مشتبہ رہتا۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی خرابی سے بچا لیا، اور بات اتنی سچی تھی کہ 24 گھنٹے بعد اسے پہلی بار اس آواز کا اور آواز والی کا خیال آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا۔
लेकिन चंद लम्हे बाद सनसनी उसके वजूद में मौज दर मौज उठी। पहली बार शऊरी तौर पर उसे पूरी तरह इस बात का इदराक हुआ, इस बात की अहमियत उस पर उजागर हुई कि वो जिससे मोहब्बत करता है ना सिर्फ उसकी आवाज मौजूद है बल्कि वो जिंदा है। सीने में उसका दिल खुशी से नाचने लगा। वो जिंदा है, उसके पास है, बल्कि वो उसके साथ उसके गांव जा रही है और अब उसके और उसकी मोहब्बत के दरमियान कोई रुकावट नहीं। अब अल्लाह ने उसे ईमान दे दिया है, अब वो हर तरह से उसके काबिल है, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन हो सकता है वो मुझे पसंद ना करे। दिल में अचानक एक वसवसे ने सर उठाया। ये मोहब्बत तो दिल का सौदा होता है। अच्छा होना एक बात है और दूसरों को अच्छा लगना दूसरी बात। तो क्या हुआ, उसने बेपरवाही से सोचा। मुझे इससे क्या, मोहब्बत कोई तिजारत तो है नहीं कि उसकी कीमत भी वसूल की जाए। मैं कब कहता हूँ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करे। मेरे लिए तो ये खुशी बहुत है कि वो जिंदा सलामत रहे और खुश रहे। बाकी रात इसमें गुजर गई। वो पहली बार आजादाना अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रहा था और उसमें बड़ी लज्जत थी। नूरबानो ख्वाब देख रही थी। यही घर था मगर बड़ी गहमा गहमी थी। अम्मा भी मौजूद थी, दोनों बहनें भी और चमन बुआ भी, और घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो यकीनन कोई तकरीब थी, बड़ी तकरीब, मगर उसकी समझ में तकरीब की नौयत नहीं आ रही थी। चमन बुआ इधर से उधर भागती फिर रही थी। काम बहुत थे और सब उन्हीं को निपटाने थे। नूरबानो मेहमानों को देख रही थी मगर उनमें उसे एक भी जान पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर था कि तमाम मेहमानों के चेहरे गैर मामूली तौर पर रोशन थे। चमन बुआ उसके पास से गुजरी तो उसने उनका हाथ थाम लिया। चमन बुआ, मेरी बात तो सुने। क्या है बेटा, जल्दी से कहो, देखती नहीं हो कितना काम है। मुझे ये तो बता दे कि तकरीब कैसी है। चमन बुआ ने उसे शिकायती नजरों से देखा। इतनी मसरूफियत में मजाक अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम हमसे पूछ रही हो कि ये तकरीब कैसी है। मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच पता नहीं है। बस बनो मत। ये कहकर बुआ ने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गईं। नूरबानो हैरत से उन्हें जाते हुए देखती रही। ये कैसी बात कर रही हैं बुआ, इनका अंदाज तो ऐसा है जैसे मुझे मालूम होना चाहिए। इतने में अम्मा उसकी तरफ चली आईं। अरे नूरबानो, तुम यूं ही बैठी हो, तैयार हो जाओ ना। मगर ये तो बताएं अम्मा कि ये कैसी तकरीब है। अम्मा ने भी उसे शिकायती नजरों से देखा। लो, हम इतनी दूर से तुम्हारी तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं और तुम हमसे तकरीब के मुतालिक पूछ रही हो। नूरबानो तकरीब को भूल गई और इतनी दूर से आने के बयान में उलझ गई। कितनी दूर से आई हैं आप, उसने मोतरिजाना लहजे में कहा। आप तो यहीं रहती हैं अम्मा। तुम भूल गईं, हम अब यहाँ नहीं रहते, हम सब तो यहाँ से चले गए थे। ख्वाब में नूरबानो को उस सानहे की याद आई और उसकी आंखें भीग गईं। मुझे याद आ गया अम्मा, जालिमों ने आप सबको मार दिया था। नहीं, मारा नहीं था, अम्मा मुस्कुरा दी। हम मरे थोड़ा ही हैं, हम तो जिंदा हैं। शहीद कभी नहीं मरते। शहीद? नूरबानो ने हैरत से दोहराया। हाँ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह अपनी रहमत से हमें ये मर्तबा अता फरमाएंगे। हम इस काबिल कहाँ थे, बस अल्लाह ने हम सबको नवाज दिया। अम्मा ने कहा, इसलिए तो हम सब तुम्हें इतने खुश नजर आ रहे हैं। ये तो हम तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ आ गए, वरना हम तो इतनी खूबसूरत जगह रहते हैं कि उसे छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। इतनी नेमतें हैं वहां अल्लाह की और ऐसी इज्जत और ऐसा सुकून है कि हमने कभी तस्वुर में भी नहीं सोचा था। लेकिन अम्मा, मैं तो यहाँ अकेली रह गई। नूरबानो ने उदास होकर कहा। मुझे भी साथ ले चले ना। भाई, अल्लाह की मशीयत यही है, इसमें बंदे की मर्जी तो नहीं चलती। आप वहां खुश हैं और मैं यहाँ नाखुश भी हूँ और अकेली भी। नूरबानो के लहजे में शिकायत दर आई। तुम ये नाशुक्रापन छोड़ दो। ये हर वक्त हर बात पर शिकायत। अम्मा के लहजे में फहमाइश थी। अल्लाह इतना मेहरबान है तुम पर, रहमत फरमाता है, नेमतें अता फरमाता है, और अब तुम ना अकेली रहोगी ना नाखुश। हम इसलिए तो आए हैं यहाँ। नूरबानो का जहन फिर उलझने लगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। किस लिए? अरे इस तकरीब के लिए, और किस लिए? अम्मा ने झुंझुलाकर कहा। बात फिर वहीं आकर रुक गई। और ये तकरीब कैसी है, ये आप बता नहीं रही।
नूर बानो भी झुंझुला गई। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम आज तुम्हारी शादी हो रही है, अम्मा ने कहा। फिर दूसरी तरफ रुख करके पुकारा, ए हूर बानो, गुलजार कहाँ हो भाई, क्या कर रही हो, जल्दी से आओ ना। वो फिर नूर बानो की तरफ मुड़ी। बस ये गैर जिम्मेदारी और सुस्ती इनकी मुझे बहुत बुरी लगती है। नूर बानो ने उनकी बात नहीं सुनी। उसका दिमाग जैसे सुन हो गया था। उसकी शादी हो रही है, मगर किससे? इतनी देर में दोनों बहनें भी उसके पास आ खड़ी हुईं। जी अम्मा, कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है, अम्मा ने उन्हें डांटा। अब ये क्या खुद दुल्हन बनेगी? तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अम्मा इसी की तो खातिर कर रहे थे हम, हूर बानो ने कहा। ये जोड़ा मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है, इन्हीं मोहतरमा के संदूक में से। नूर बानो शर्मिंदा हुई, खिसिया गई। मुझे अच्छा लगा था बाजी, मैंने सोचा अब तुम तो पहनोगी नहीं, इसलिए मैंने रख लिया। अच्छा किया नूर, यही तुम्हारा शादी का जोड़ा है। चलो अब तुम्हें तैयार करा दी, हूर बानो ने खुशदिली से कहा। तुम लोग जल्दी करो, मैं जरा मेहमानों को देख लूं, अम्मा ने कहा और कमरे से चली गईं। उसी लम्हे बाहर किसी ने कहा, अरे बारात नहीं आई अब तक, आ गई है, दुल्हा मियाँ मस्जिद गए हैं शुक्राने के नफिल अदा करने। नूर बानो उदास हो गई। तो आज छोटे ठाकुर का कांटा हमेशा के लिए निकल रहा है, उसने सोचा। फिर हैरत से सोचा, कांटा निकलने में उदासी कैसी? मगर उसे रोना आने लगा। चलो नूर, अब कपड़े बदल लो, हूर बानो ने उससे कहा। फिर हम तुम्हें तैयार कर दें तुम्हारे दुल्हा के लिए। मुझे ये तो बता दो कि मेरी शादी किससे हो रही है? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में फरियाद थी। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी शादी अब्दुल हक से हो रही है। कौन अब्दुल हक? वही अब्दुल हक जिसे हम पहले छोटा ठाकुर कहते थे। नूर बानो हैरान रह गई, मगर वो बेहद खुशगवार हैरत थी। फिर अचानक उसे बाजी पर तरस आने लगा। लेकिन बाजी, तुम तो उनसे। हूर बानो ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे जुमला पूरा नहीं करने दिया। कुछ भी नहीं कहना, हम जहां हैं वहां इन बातों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ तुम्हें विदा करने आए हैं। लेकिन बाजी, तुम्हें अफसोस बिल्कुल नहीं होगा, हूर बानो ने उसकी बात काट दी। हम जहां हैं वहां ऐसी नेमतें हैं, ऐसी खुशियां हैं जिनका यहाँ तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ना कि अब मेरे लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं। और ये तुम्हारा जोड़ा, ये हमने तुम्हें सौंप दिया, ये भी और अपनी मोहब्बत भी। हूर बानो मुस्कुराई। वो बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी, उसमें सच्ची खुशी थी। अब ये तुम्हारा निकाह का जोड़ा है, उरूसी जोड़ा। क्या मेरे लिए नया उरूसी जोड़ा नहीं बन सकता था? नूर बानो के लहजे में शिकायत थी। देखो, एक तो बिल्कुल अचानक हो रही है तुम्हारी शादी, तैयारी को कोई मौका ही नहीं मिला। दूसरे, तुम्हें ये जोड़ा पसंद है। तीसरे, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम इस जोड़े में कितनी हसीन लगोगी। मैं और हसीन? नूर बानो ने हकारत से कहा। खुद देख लेना, बस अब कपड़े बदल लो। नूर बानो ने कपड़े बदले। बाजी और गुलनार उसे तैयार करने लगी। फिर हूर बानो ने उसे कदादम आईने के सामने खड़ा कर दिया। लो, खुद देख लो। नूर बानो ने नजरें उठाकर आईने में अपने अक्स को देखा और देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वो है। उसे तो जैसे जादू के जोर से किसी ने पत्थर का बना दिया था। वो दीवार के साथ जा लगी। उसने पीछे खड़ी दोनों बहनों के अक्स को भी देखा। उन दोनों के सामने तो वो हमेशा नौकरानी लगती थी, लेकिन आज वो दोनों ही उसके सामने फीकी लग रही थीं। देखा, आज तो हम दोनों भी तुम्हारी कनीज लग रही हैं, हूर बानो ने हंसकर कहा। उसी वक्त बाहर किसी ने खुशी से पुकार कर कहा, बारात आ गई। अम्मा कमरे में आई। उन्होंने उसे देखा तो खुश होकर बलाएं लेने लगी। मैं हमेशा फिक्र करती थी कि मेरी ये बेटी बहुत मामूली शक्लो सूरत की है, इसका क्या होगा। मैं बहुत दुआएं करती थी तुम्हारे लिए, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल कर ली। तुम तो इन दोनों से बढ़कर हसीन लग रही हो और अल्लाह ने नसीब भी अच्छे कर दिए। उसने शर्माकर सर झुका लिया। अम्मा ने उसकी पेशानी चूम ली। देखो नूर बानो, मेरे अब्दुल हक का दिल भी कभी मैला न होने देना। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी नेमत अता फरमाई है, उसकी हमेशा कद्र करना, उसे खुश रखना, उसे कभी किसी शिकायत का मौका न देना। उसी वक्त उसे नक्कारों की आवाज सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। ख्वाब ऐसा था कि उसका टूटना उसे बुरा लगा।
वो चाहती थी कि ख्वाब का सिलसिला वहीं से जुड़ जाए जहां से टूटा था। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली, मगर उससे सोया नहीं गया। वो लेटी ख्वाब के बारे में सोचती रही। उसे अपना सरापा याद आया, मगर उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के बजाय उसने उसका एहसास कमतरी और बढ़ा दिया। उसने सोचा, ख्वाब में तो कुछ भी हो जाता है, इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता। ख्वाब में तो मेरी उससे शादी भी हो गई जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जबकि हकीकत में ये नामुमकिन है। मुझ जैसी लड़कियों के लिए तो ख्वाब ही होते हैं। लेकिन इस ख्याल से उसे खुशी हो रही थी कि ख्वाब में बाजी ने अपने उस जोड़े को उसका उरूसी जोड़ा करार दिया और अपनी मोहब्बत भी उसे सौंप दी। चंद लम्हे बाद वो सहरी बनाने के लिए खड़ी हुई। ये ख्याल आया तो उसका दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा कि आज वो ये घर छोड़कर किसी अजनबी जगह के लिए रवाना हो रही है और उसे हिंदू औरत के भेष में बेपर्दा सफर करना है। अब्दुल हक ने इस सफर के बारे में बहुत सोचा था। वो जानता था कि ये आसान सफर नहीं है। मुतासिब हिंदू और सिख सफर करने वालों पर खास तौर पर घात लगाते थे। उनके पास इसकी माकूल वजह भी थी। जो इलाके हिंदुस्तान में थे वहां से हिजरत करने वाले सिर्फ मुसलमान ही थे और वो उन इलाकों की तरफ जा रहे थे जो पाकिस्तान में शामिल हुए थे। दूसरी बात ये थी कि वो अपने गांव का नाम नहीं ले सकता था। इस सूरत में वो मुश्तबा करार पाता, क्योंकि जिस गांव का नामो निशान मिट चुका हो वहां कोई क्यों जाना चाहेगा। रुकावटें अपनी जगह, बहरहाल उन्हें तो वहां जाना था। बाबा ने कहा था कि ये हुक्म है, अब हुक्म है तो उसे तामील करनी है। उसने फैसला किया कि पहले वो जयपुर जाएंगे, वहां से वो ऊंट खरीद कर उनके जरिए सफर करेंगे। उसे एहसास था कि अपना गांव ढूंढना भी आसान नहीं होगा। सफर की सुबह साथ ले जाने वाले सामान पर भी बहस हुई। नूरबानो किताबें निकालकर अलग रख रही थी। वो उस वक्त हिंदुआना लिबास में थी और इसकी वजह से खासी चिड़चिड़ी हो रही थी। ये क्या है? अब्दुल हक ने पूछा। कुरान पाक के नुस्खे हैं और दीनी किताबें हैं, नूरबानो ने जवाब दिया। तो आप ये अलग क्यों कर रही हैं? हम हिंदुओं के भेष में सफर कर रहे हैं, ये सब कुछ अपने सामान में कैसे रख सकते हैं? मैं इनका जायजा ले सकता हूँ? क्यों नहीं? अब्दुल हक ने किताबों का जायजा लिया और खुश हो गया। ये नेमत तो हम नहीं छोड़ सकते, मुझे तो इनकी बहुत जरूरत है। मैंने यही सोच कर निकाली थी, लेकिन इन्हें साथ रखना खतरनाक होगा। नूरबानो ने कुछ झिझकते, कुछ शर्माते हुए कहा, कुछ भी हो, मैं ये सब किताबें जरूर लेकर जाऊंगा। मंझली बीबी ठीक कह रही हैं मालिक, जुबैर बोला। अब्दुल हक चंद लम्हे सोचता रहा। इन्हें कपड़ों में लपेट कर रख लें, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। नूरबानो ने अजीब सी नजरों से उसे देखा। जैसी आपकी मर्जी। एक जाती बात पूछ सकता हूँ आपसे? अब्दुल हक ने उससे कहा। नूरबानो फिर झिझकी। जी जरूर, आपका नाम क्या है? नूरबानो का चेहरा तमतमा उठा। चंद लम्हे झिझकने के बाद उसने कहा, नूरबानो। अवतार सिंह ने अपनी खुशी छुपाने के लिए सर झुका लिया। कैसा खूबसूरत नाम है, उसने दिल में सोचा। जयपुर जाने के लिए वो गाड़ी में बैठे। सफर शुरू हो गया, मगर दिल्ली शहर से निकलते ही मुसल्लह हिंदुओं और सिखों के एक जत्थे ने गाड़ी रुकवा दी। उन्होंने तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरने का हुक्म दिया और लोग भी गाड़ी से उतर आए। सवाल जवाब होने लगे। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कौन हो? नाम क्या है? वो पूछते और जिससे मुतमईन होते उसे गाड़ी में भेज देते। नूरबानो ने घूंघट काट रखा था। लिबास भी ऐसा था जैसे नई नई शादी हुई हो। मेरा नाम ठाकुर अवतार सिंह है। मैं रघु हूँ, रघबीर, छोटे ठाकुर का सेवक। और ये मेरी पत्नी है, रंजना। और ये कौन है? सवाल नूरबानो के बारे में था और अब्दुल हक जानता था कि एक लम्हे की हिचकिचाहट भी नुकसानदेह साबित होगी। चुनाचा उसने सोचे समझे बगैर बेसाख्ता जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है, लाजवंती। घूंघट के अंदर नूरबानो के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। दिल यूं धड़का जैसे सीने से निकल आएगा। इसका घूंघट तो उठाओ महाराज। अब्दुल हक के तेवर बदलने लगे। लाठी की मुठ पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। घूंघट की आड़ में उसकी तरफ देखते हुए नूरबानो ने भांप लिया कि मामला बिगड़ने वाला है। उसने जल्दी से घूंघट उठा दिया। अब्दुल हक सख्त जवाब देने ही वाला था कि नूरबानो ने उसे हैरान कर दिया। वो नूरबानो को देखता रह गया। नूरबानो ने घूंघट तो उठा दिया था, लेकिन इतने सारे मर्दों के सामने पहली बार बेहिजाब हुई थी। उसकी नजरें झुक गईं। पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए।
सचमुच लाज वाली है मित्रों, रोकने वालों में से एक ने दूसरों से कहा। अब अब्दुल हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी हद में रहो, उसने सख्त लहजे में कहा। हम ठाकुर लोग जान लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। बोलने वाला कुछ कहना चाहता था, लेकिन दूसरे ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हम अपने लोगों को सताने के लिए नहीं निकले हैं, वो बोला। जरूरी नहीं कि ये अपने ही लोग हों। क्या मतलब? मुसलमान बच निकलने के लिए हिंदुओं का रूप भी धार लेते हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये कौन सी मुश्किल बात है? अलग ले चलकर देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसने शैतानत भरे लहजे में कहा। बात अब्दुल हक की समझ में नहीं आई, लेकिन जुबैर समझ गया। ताहम अब्दुल हक को यह अंदाजा हो गया कि वो कोई ऐसी बुरी बात है जिसे कबूल करने पर वो मर जाने को तरजीह देगा। लाठी की मुठ पर उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। जुबैर ने दूसरे शख्स से कहा, महाशय, आप जरा अलग चलकर मेरी एक बात सुन लें। सुनना सुनाना क्या है, हमें तो देखना है। कहो तो यहीं देख लें, सबके सामने। पहले वाले ने फिर मुदाखिलत की। जुबैर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं धर्म के नाम पर विनती कर रहा हूं महाशय। दूसरे शख्स ने जुबैर का हाथ थामा और उसे एक तरफ ले गया। अब बोलो, क्या बात है? मेरा मालिक राजपूत है, आन के लिए जान लेना भी जानता है और जान देना भी। आपका मित्र उनका अपमान किए जा रहा है। मुझे डर है कि यहाँ खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा? वो मज़हका लहजे में बोला। तुम्हारे पास है क्या? खून भी तुम्हारा होगा और खराबा भी। तुम गलत समझ रहे हो महाशय। छोटे ठाकुर को लठिया का हुनर आता है। 40-50 आदमी तो इनके सामने ठहर भी नहीं सकते। उसको यकीन तो नहीं आया, लेकिन बहरहाल वो मुतासिर हुआ। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे जिस तरह चाहो देख लो, लेकिन छोटे ठाकुर ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो ठीक है। इसी दौरान वो शरपसंद भी उनके पास आ गया था, जिसकी वो तजवीज़ थी। उसके साथी ने कहा, लालू तू इसे देख ले। लालू जुबैर की तरफ मुड़ा। चल, धोती ऊपर उठा। चंद लम्हे बाद लालू ने अपने साथी से कहा, ये हिंदू ही है। जाओ महाशय, गाड़ी में बैठ जाओ। यूं ये मुश्किल मरहला आसान हो गया। जुबैर को पता ही नहीं था कि उसने अपने मालिक को बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। खुद अब्दुल हक को भी इल्म नहीं था कि वो मरहला कितना दुश्वार था। जयपुर से उनके असल सफर का आगाज हुआ। उन्होंने 4 ऊँट लिए थे। एक पर सामान था, दूसरे पर राबिया और नूरबानो थी। अब्दुल हक और जुबैर बाकी दोनों ऊँटों पर थे। अब्दुल हक को एहसास था कि नूरबानो के लिए वो सफर बहुत तकलीफ देह है। उसने हतुल इम्कान उसे आसान करने की कोशिश की थी। राबिया को ऊँट का तजुर्बा था, इसलिए नूरबानो उसके साथ थी। सहरा का सफर, और वो भी दिन में, बहुत ही दुश्वार होता है। धूप ऐसी होती है कि जिस्म का पानी खत्म हो जाता है, और वो सब तो रोजे से थे। रेत देख देख कर उनके जी उब गए। वो सिमत पूछ कर चले थे। अब्दुल हक अपने गांव का हवाला तो नहीं दे सकता था, ताहम उसने सुंदरपुर के हवाले से रास्ता पूछा था। ये करीब का वो गांव था जो उसकी मालूमात के मुताबिक तबाही से बच गया था। अब धूप की तेजी खत्म हो रही थी और वो बतदरीज फीकी होती जा रही थी। अब्दुल हक को तशवीश होने लगी। मुसाफत का उसे खूब अंदाजा था। उसके ख्याल में अब तक उन्हें गांव पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो कोई आसार नहीं थे। सहरा में सूरज बहुत तेजी से गुरूब होता है, अभी नजर आ रहा है और अभी गायब, और उनकी तो जिंदगी उस सहरा में गुजरी थी। जुबैर ने अब्दुल हक से कहा, मालिक सांझ हो गई है, हमें रोजा भी खोलना है। अभी कुछ वक्त है, अब्दुल हक ने कहा। देखो, शायद कोई मुनासिब जगह नजर आ जाए। वो चलते रहे। कोई 15 मिनट बाद उन्हें कुछ फासले पर खजूरों के दरख्तों का एक छोटा सा झुंड नजर आया। चलो, यहाँ इफ्तार करें, अब्दुल हक ने खुश होकर कहा। सबसे ज्यादा खुशी नूरबानो को हुई थी। इस सफर ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसके इंजर पिंजर ढीले हो गए थे, जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि उतरने के बाद वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकेगी। वो दरख्तों के करीब पहुंचे तो उन्हें दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आई। लगता है हम यहाँ रात भी गुजार सकेंगे, अब्दुल हक ने कहा। उन्होंने वहां पड़ाव डाला। ऊंटों को दरख्तों से बांध दिया गया। नूरबानो रेत पर बैठ गई थी। राबिया सामान उतरवाने में जुबैर की मदद कर रही थी। अब्दुल हक ये देखने की गर्ज से झोंपड़ी की तरफ बढ़ा कि वो आबाद है या नहीं। उसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से एक लरसती तड़पती हुई आवाज उभरी।
अरे ये तो मेरे छोटे ठाकुर के कदमों की चाप है। अरे क्या मेरा छोटा ठाकुर आ गया, मेरा छोटा ठाकुर। ऐ अल्लाह। अब्दुल हक के पांव जैसे जमीन ने पकड़ लिए, वो कदम उठाना भूल गया। उसकी नजरें झोपड़ी के दरवाजे पर जमी हुई थी। वो आवाज सबने सुनी थी। नूरबानो अपनी बेआरामी और थकन भूल गई। वो भी उठकर झोपड़ी की सिमत चली। उसी लम्हे दरवाजे से एक बूढ़ी औरत तेज मगर लड़खड़ाते कदमों से निकली। उसके उस्तख्वानी वजूद में हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा छोटा ठाकुर आ गया। कहाँ हो तुम छोटे ठाकुर? अब्दुल हक अपनी जगह बुत बना खड़ा था। वो सब उसके लिए इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि वो सांस लेना भी भूल गया था। उसके होंठ हिल रहे थे मगर कोई आवाज नहीं थी। बूढ़ी औरत हाथों से इधर उधर टटोल रही थी। नहीं, मुझे धोखा नहीं हो सकता। मेरा छोटा ठाकुर यहीं कहीं है। छोटे ठाकुर, तुम बोलते क्यों नहीं? अब्दुल हक के होंठ फिर लर्जे मगर बेआवाज। नूरबानो भी वहीं खड़ी थी। बूढ़ी औरत एक तरफ लपकी और खजूर के एक दरख्त से टकराकर गिर गई। ये वो लम्हा था कि जमीन ने जैसे अब्दुल हक के पैरों को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो बूढ़ी औरत की तरफ झपटा जो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे उठाया और लिपटा लिया। फिर वो दीवाना वार उसकी पेशानी चूमने लगा। हाँ अम्मा, ये मैं ही हूं। अम्मा, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? बूढ़ी औरत बड़ी बेयकीनी से उसके चेहरे को अपनी कांपती उंगलियों से छू रही थी। चोट? कौन सी चोट? मैं तो हर दुख भूल गई अपना। छोटे ठाकुर, तुम आ गए तो सब कुछ धुल गया मेरे छोटे ठाकुर। अब तो मुझे ऐसे ना पुकारो अम्मा, अब मैं अब्दुल हक हूं। अब्दुल हक ने भराई हुई आवाज में कहा और हमीदा एकदम साकित हो गई। अब्दुल हक के चेहरे पर उसका हाथ जहां था वहीं रह गया। उसने यूं सर उठाया जैसे उसका चेहरा तक रही हो या जैसे उसके कहे हुए लफ्जों की बाजगश्त सुनने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने लरजती आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना पुत्र। अम्मा, अब मुझे कभी ठाकुर ना कहना। अब मेरा नाम अब्दुल हक है। तुम मुसलमान हो गए? हाँ अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हमीदा ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और आंचल फैलाकर बिखरती हुई आवाज में बोली, ऐ अल्लाह, शुक्र है तेरा। ऐ अल्लाह, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। फिर वो अब्दुल हक से लिपट गई और ऐसे रोने लगी जैसे अब कभी चुप नहीं होगी। नूरबानो बूढ़ी औरत की बात सुनकर हैरत से सुन होकर रह गई थी। हालांकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बूढ़ी औरत ने वो अल्फाज कहे हैं। उसे लगता था कि वो उसकी समात का वहम है। वो पागलों की तरह एक बात सोचे जा रही थी, क्या छोटे ठाकुर ने इस मुसलमान औरत का दूध पिया था? जुबैर की पुकार ने उस मंजर को तब्दील कर दिया। मालिक, सूरज डूब गया है। हमीदा चौंकी। अरे ये तो रघु की आवाज है। रघु नहीं अम्मा, अब वो जुबैर है और रंजना का नाम अब राबिया है। अब्दुल हक ने कहा और नरमी से हमीदा को खुद से अलग किया। तुमसे बहुत बातें करनी है अम्मा, मगर इफ्तार का वक्त हो गया है और मुझे अजान भी देनी है। चंद लम्हे बाद उस मुर्दा गांव की फजा में आजान की आवाज गूंज रही थी। जहां पहले कभी मस्जिद नहीं थी, जहां सिर्फ 3 मुसलमान रहते थे, और वहां आजान देने का एजाज ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे अब्दुल हक को हासिल हो रहा था, जबकि उसे इस्लाम कबूल किए सिर्फ 3 दिन हुए थे।